11th December 2019, the Citizenship Amendment Bill (CAA) proposed by Home Minister Amit Shah was signed by the President of India after being passed through both houses of the Parliament. The law provides an opportunity for illegal Hindu, Sikh, Parsi, Christian, Buddhist and Jain immigrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to obtain citizenship. Muslims were exclusively pushed outside the purview of naturalization. I'll give you an example. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They are not in an equal category. Simultaneously, there is a serious attempt to implement a National Register of Citizens, NRC, which will result in a large section of the population being devoid of citizenship rights altogether. Of these excluded populations, the non-Muslim communities can obtain citizenship through CAA, while Muslims will be deprived of their rightful place in India. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा. The CAA and NRC evoked large-scale demonstrations across the country, primarily mobilized by the Muslim community. Students of Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia erupted with anger, producing waves of massive gatherings. Protests at Shaheen Bagh became a model that inspired similar gatherings and flash protests across the country. The protesters were brutally assaulted and detained by police forces at various protest sites. The movement was a demonstration of Muslims voicing their dissent and a struggle for dignity. The movement faced backlash from the members of the Hindu Nationalist Party (BJP), which resulted in hate speeches and anti-Muslim slurs. On the evening of 23rd February, a BJP leader, Kapil Mishra, called for immediate evacuation of the protest sites in the capital and threatened them of violence. डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं. मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो. ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं. उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा. ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय. This led to a domino effect of events that resulted in the death of over 54 people. The Hindu mob, aided and abetted by the Delhi police, targeted and set ablaze Muslim houses and shops in order to destabilize them financially on the same day when the then President of the USA, Donald Trump, was being hosted by Prime Minister Narendra Modi, merely 30 kilometers away from the site of the pogrom in northeast Delhi. The mob plundered money, jewelry and other valuables from Muslim houses and set their homes on fire by exploding gas cylinders. Victims were made to chant Hindu nationalist slogans of Jai Shri Ram and Bharat Mata Ki Jai. They were made to sing the national anthem while being lynched, torched and massacred in broad daylight. Mosques were vandalized and copies of the Holy Quran were burnt. The mob climbed onto the minarets of the mosque to hoist saffron flags. Many await justice and compensation even after 1 year of the state-sponsored pogrom in New Delhi. चार बजे भोर में जे कोई आया, मतलब यहाँ तो मैं नहीं देख पाया, कुछ आँख से भी कमज़ोर हो गया, तो आया तो वो फ़ोन से कहता कि तुम लोगों से कुछ नहीं हुआ. समझे ना. दीन को सामने एक किसका दुकान है, ये सामने जो वो मकबूल का, दीन को करीब 12-1 बजे 3 लौंडा आया और उसका दुकान तोड़ना शुरू कर दिया. हथौड़ी से मारते मारते उन्होंने थक गया, ताला नहीं टूटा. जब ताला नहीं टूटा तो सेटर को तोड़ा. सेटर को तोड़ करके उसके बाद टायर जलाया और टायर जला करके सेटर के अंदर फेंक दिया. आग लग गया. फिर ऐसा ही करके चला गया, गली तक रहा. फिर उन्होंने इस गली से, वहाँ मेरा 2 गाड़ी खड़ा हुआ था,
वो खाली प्लॉट से जा करके टायर जला जला करके नीचे फेंक दिया। अब नीचे फेंक दिया तो गाड़ी में आग लगना शुरू हो गया तो ऊपर वो जो अब मकान अभी ढल रहा है उस पर से मतलब पानी हिम्मत करके उधर से पथराव भी हो रहा है। जब भी लड़का बच्चा छिप करके उस पे पानी डाल रहा है तो गाड़ी पर पानी डालता था तो पानी चारों बगल गिर जाता था, नीचे जाता ही नहीं था। वो मतलब पूरा के पूरा फूक गया। उस गली में जब आग लगा दिया उस गली का सारे जितना भी था बच्चा जनानी मर्द सब मेरे छत पे इधर से उधर से कूदना शुरू कर दिया। तो बच्चा यार कैसे जैसे गेंद फेंकता है ना वैसे जान बचाने के लिए तो लोक लो ऐसे फेंक रहा था। तो यही मेरा बेटा इस छत पे एगो जीना था तो कहा अभी रुक जाए, ऐसे क्यों फेंक रही, कोई गिर गाड़ जाए तो मर जाएगा। इस छत पर से जीना ले जा कर के लगाया तो सारे आदमी उतर के मेरे छत पे आ गया। उसके बाद में सारे आदमी निकल गए। निकल जाने के बाद एक कुत्ता था मेरा बंटी नाम का, वो रह गया था यहीं। हम लोग चले गए। जाने के बाद उसने ताला तोड़ा, मेन गेट में ताला लगा गए थे। ताला तोड़ने के बाद कुत्ता उसको अंदर नहीं होने देता था। 1 घंटे तक ले उसने अड़ा करके रखा। फिर बंदूक वाला आया, कुत्ता को मारा। कुत्ता को मारने के बाद 5 बजे हमारे घर में लूटपाट करके 5 बजे हमारे घर में आग लगा। इतना हमने देखा। मतलब जो भी मम्मी ने सबके लिए रखा। एक सिलेंडर था, दूसरी मंजिल पे सिलेंडर भी फट गया। हमारा कम से कम सब मिला करके 3 करोड़ का नुकसान। 24 तारीख को दंगा हुआ था तो फिलहाल में एक खूब भारी भीड़ सी आई थी नाले पे। एकदम नाले पे पल्ली साइड पे एकदम भीड़ सी झुकी तो एकदम पत्थर उनने फेंकना शुरू कर दिए थे। फिर जब ज़्यादा ही होने लगा था लड़ाई, फिर वो हम लोग अपने अपनी छत पर जैसे लोग गए, फिर वो गलियों में घुसने लगे। पहले नाले ही पे थे, जैसे रात होने लगी वैसे ही वो गलियों में घुसने लगे। तो चिल्लाते थे, वही नारे लगा रहे थे जय सिया राम के, और नारे लगाते ही लगाते पत्थर आग लगाने लगे। किसी घर में कुछ फेंक दें, किसी घर में फेंक दें कुछ। फिर तो भैया हम लोग तो सब अपने अपने घर में घुस गए। फिर उनने आग लगा दी थी, हमारे घर में भी लगा दी थी, पल्ले वाले में पूरा ऊपर से नीचे तलक जला दिया था। हम तो उसी पे थे ऊपर। नीचे आग उनने लगाई तो हम लोग 3री मंजिल पे चढ़ गए थे। फिर जब वे 3री मंजिल पे भाग गए तब तक हम पीछे वाली पे कूद गए थे। पीछे जैसे करीब घंटे भर बैठे रहे तब तक उनने पीछे वाले में भी आग लगा दी थी। फिर हम उससे 2 मंजिल का बराबर मकान था 3री मंजिल पर, फिर मैं उस पर कूद गए। फिर उन्होंने उस पर भी लगा दी थी। फिर हम 3 मकान हमारे छोड़ के चौथा मकान था दूसरी तरफ, उसमें मैं कूद गए थे। सवेरे 6 बजे के टाइम पे चमन पार्क के लोग आए थे फौजियों को लेके, फिर वो हमें लोगों को निकाल ले गए थे। Few journalists and few people knew that something bad was going to happen. Like, you know, as journalists, we trust on some people, and one of the person we trust is Mr. Amit Shah. If he says that there's going to be an electric shock for Shaheen Bagh, we obviously know something was going to be wrong, something is going to happen. So when I walked, I started to see much less hostile police. Policemen were sitting, they were having chai, people were serving them chai, water, things. And these people had swords in their hands, you know, they were not like, you know, volunteers or relief workers. They were mob, they were, you know, there were Hindutva mobs over there. And they had all kind of weaponaries at the same time, even lethal weapons. At the same time, they were in a very friendly nature with the policemen over there. 2 things was sure, that I can't tell any person my name, I can't show my press card. Nobody should know that
I am walking around them. So I was like a ghost or, fly on the wall, something like that, in between hundreds of people. I told them, as your Al Jazeera crew, you don't want to go there. And they actually took my word. They stopped over there. They started filming from there, in the middle of the road. So mobs were like, like around me and us. So there was this video, like I put my, like I was recording it also on the same side, on the side. Because like, if something happens, people should know, people should see the faces. Whatever happens, I know the card would be saved. That was the last leg that I had. So there's this video in that I say like, come, form a line, let's go. Few women, elderly women, and we started following them. We were with them. They were having sticks with them. They were telling us, how Muslims have killed Hindus and their bodies are lying on the road from Jafrabad to Mojpur, the road which we have crossed, and we have not seen anything like that. One of them even said that they were eating flesh. Muslims were eating flesh. Like, that was the message that they were getting, I don't know if they are victims or, of this misinformation of or fake news or something. And they wanted to take revenge. And like, we can't sit, they want to take revenge. These ladies were telling the elderlies who were sitting on the side of the road that, you have to find Muslim houses, you have to find Muslim shops, you have to loot them. And what happens is that two Muslim women wearing burqa comes in front of them, and I had the guilt of the day before what happened in front of me. It's not something, it's a very different kind of guilt, if something happens in front of you and you just stand there and you watch. And that has never happened in my life also before this. I prayed. I had no other choice. I just looked away and I started praying, please save these two people. I can't. I may not be able to help them. The second thing is that I'm going to be compromised in another way also. They some kind of like they escaped. They ran to the other road, and they escaped. And I knew that I can't stay long because like I was on the thin line of being a journalist. My ideas of being professional was not very concrete at that point of time. I was getting emotional, I was getting frustrated. मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा के बैठा था, उसी वक्त उन्होंने मस्जिद पे पथराव शुरू किया। फिर मस्जिद में आग लगाई, 1 घंटे करीब पथराव किया, फिर आग लगा दी 4 मंजिल में। तो हम सबसे ऊपर छत पे चले गए और हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। फिर वो हमें मारने के लिए गए। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली और हम भी खुशामद कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे उनके आगे कि भाई हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारे घर तुमने जला दिए, मस्जिद जला दी, हमारी जान कम से कम बख्श दो। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। फिर हमने 1-2 हिंदू भाइयों को फ़ोन किया, उनको कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। खैर 1-2 हिंदू भाई हमारे आए, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया और बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने। तो उन्होंने शाम को जो है असर और मगरिब के बीच में हमें मस्जिद से निकाला। नहीं, सब ने, पूरी कॉलोनी ने कॉल किया पुलिस को। पुलिस वाले जिस वक्त मस्जिद पे हमला किया, मस्जिद में आग लगी, पुलिस वाले खड़े हुए थे, दंगाइयों के पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। फिर हमने FIR कराई हैं, मस्जिद की भी FIR है और करीब करीब हर घर की FIR है हमारे। SDM साहब को मैं लाया हूँ खुद बुला के, ACP साहब को लाया हूँ। ACP साहब ने मेरे घर का मुआयना किया है। मेरे घर में लूटमार हुई, हमारे किराएदार हैं शकील भाई, इनके घर में लूटमार हुई। ACP साहब ने खुद कहा कि ये आप अपने मकान में रहो और मैंने मुआयना कर लिया है। अब SDM साहब ने हमारी फाइलें रिजेक्ट कर दी और SDM साहब कहते हैं कि जी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड से कोई मदद नहीं हुई, वक्फ बोर्ड ने कोई पैसा नहीं दिया। हमने कई चक्कर काटे हैं वक्फ बोर्ड में भी। कुछ मकान तो जमीयत उलमा हिंद ने किए हैं तामीर, मस्जिद को भी तामीर जमीयत उलमा हिंद ने किया है। और
एक मेरा मकान, नवाब भाई का मकान, नवाब मलिक साहब हैं, हारून भाई हैं और एक आज़ाद भाई हैं, एक नईम अंसारी साहब हैं। ये 6 मकान जो है जमात इस्लामी ने तामीर कराए हैं। कारोबार लाइन से जो काम किया है वो जमात इस्लामी ने किया है, रोज़गार के उससे। पुलिस जिनका भी एफआईआर रजिस्टर कर रही थी, जो भी कंप्लेंट जा रहा था, वो दूसरे किसी और की जो नाम पे एफआईआर है। अब सपोज मान लो यहाँ पे 10 घर है और उधर मान लो 10 नंबर गली है। मेरी गली के अंदर कुछ चोरी हुआ या कुछ नुकसान हुआ, तो उस गली के शख्स ने जो एफआईआर करवाया है, तो मेरी कंप्लेंट उस एफआईआर के साथ अटैच कर दिया और मुझे उसका विटनेस बना दिया। अब बताइए मैं उसका विटनेस कैसे हो गया? वहाँ तो मैं गया भी नहीं हूँ। तो ये लीगल इशू अभी हम डील कर रहे हैं। इसके लिए हम अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने वाले हैं। एफआईआर, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और एफआईआर। तो ज़्यादातर आप जैसे आपने अगर देखोगे 1984 के दंगों में भी जो कमेटी जो कमीशन बना था, उसने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। अभी से नहीं, स्टेट का टूल ही है ये। जब भी कोई ऐसे क्रिमिनल राइट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं जितनी भी कंप्लेंट हो उसको ख़त्म किया जाए। तो 1984 के दंगों में एक एफआईआर करने कम से कम उन्होंने 400 के करीब कंप्लेंट को अटैच कर रखा था। तो आप बताइए एक आयोग 400 कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों के नाम, और वो भी क्या लिख रहे हैं, एक एफआईआर दे दिया, उस पर कंटेंट कुछ भी नहीं है, उसमें बस लिखा हुआ है कुछ दंगाई आए, मेरा घर जला के चले गए। अब जब स्टेट मेरे राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो स्टेट के स्टेट होने का फ़ायदा क्या, मतलब ही क्या? फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे जो भी राइट्स है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करे। ऊपर जीने पे लड़का था, कह रहा अंकल क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा बेटा बहुत भीड़ आ गई है ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा अंकल सबसे ऊपर भेज दो, 3री मंजिल पे कमरा आएगा, आप इन्हें बच्चों को सबको वहाँ भेज दो। अब मैं जो है बच्चों को वहाँ ऊपर भेज दिया और जाके ऊपर एक कमरा था छोटा सा, इससे भी छोटा कमरा उनका, वहाँ जो मैंने कुंडी लगा के बच्चों को अंदर कर दिया। तो मैं वहाँ खिड़की पे खड़ा हो गया, देखता क्या था मेरे भाई के यहाँ आग लग रही है। तो मैंने इन बच्चों को किसी को नहीं बताया, लड़कियों को, घरवाली किसी को नहीं, मैंने कुंडी लगा दी। मैं वहाँ देखता रहा। तो मेरा भाई फिर देखता गया, मेरा भाई वहाँ खड़ा, उसके साथ में 10-15 जना भाई के साथ में, और एक तो इतना मोटा जो डंडा होता है जो इससे वर्जिश करते हैं, जो वो डंडा एक आदमी के, उसका नाम है हरिकांत, वो हरिकांत के हाथ में डंडा। तो उनने मेरे भाई के पीठ पे मारा डंडा, मेरा भाई गिर पड़ा, और गिरने के बाद फिर खड़ा हुआ तो मेरा भाई ऐसे हाथ जोड़ रहा था वहाँ। वो क्या सुनाई कुछ नहीं आ रही थी, दूर का फ़र्क था वहाँ से, वो देख नहीं पा रहा था भाई मेरा कौन गिरा, वो अकेला मेरा भाई वहाँ फंसा हुआ था। तो एक उसके वो ऐसे हाथ जोड़ रहा था, कुछ इल्तिजा कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। तो एक ने लखपत नाम का जो, उसने मेरे भाई के यहाँ गोली मार दी। आवाज़ उसकी मेरे वहाँ तक आई, वो गोली मार के मेरा भाई गिर गया। मेरा भाई गिरने के बाद वो तड़पता रहा, तो 2-3 नीचे खड़े थे, लात मार रहे थे मेरे भाई के। मेरा भाई गिर पड़ा, मेरे भाई के लाते मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से। मतलब मेरा भाई तड़प रहा था, हाथ पैर फेंक रहा था, उन्होंने कोई दया नहीं आई मेरे भाई को। फिर 15-20 जनों ने मेरे भाई को उठाया, और जिस तरफ मेरे भाई के यहाँ आग लगाई थी, उन्होंने मेरे भाई को उठा करके तड़पता हुआ उसे फेंक दिया वहाँ। और मैं वहीं बैठ के बस रोता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, और मेरे भाई को आग में फेंक दिया। फिर उन लोगों ने मेरे सामने जो रेड़ी रिक्शा हैं, ठेलियाँ जो मेरे भाई किराए पे देते थे, उठा के रेड़ियाँ मेरे भाई के ऊपर फेंक दी। वो रेड़ी रिक्शा सब वहीं जल के राख हो गई। पता चला कि जो लड़का जिस घर में मैं था, वही लड़का देख के आया, कह रहा अंकल तुम्हारे भाई को तो मार दिया। मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया। कह रहा अंकल अब तुम्हारे घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वहाँ आग लगा दी फिर मेरे घर के अंदर। जो नकदी, कैश, जेवर, मेरे जो फ्रिज थे नए लाए हुए, मैंने MP वाले से ले रखे थे, आज भी उसके मेरे पे 10,000 रुपये हैं जो फ्रिज लाया था। मैं थोड़ा सामान ला करके घर में रख रहा था। जो नए कम्बल वगैरह, रजाइयाँ बच्ची के लिए इकट्ठी कर रहा था। 15 मार्च की शादी थी, 15-20 दिन रह गए थे शादी के। जो मैं वहाँ पानी देता तो फ्री में पिलवाता था, मोटर चला के पानी पीने का। तो ये बच्चा कह रहा पापा हम तो इन लोगों को पानी पिलवाते हैं और ये हमें मौत दे रहे हैं,
ये हमारे से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये मेरा बच्चा इतना सा था, इसे समझ नहीं, ये LKG में पढ़ रहा है, ये बच्चा मेरे वहाँ इतना शब्द कह रहा। What is most unfortunate is that this was a case where hundreds of people were affected and they were left shelterless, afraid and hurt. And when we talk about the compensation amount or the way the compensation is seen or calculated does not address the fact that these people, does not address the mental trauma that they have gone through. It completely, I think, negates the idea that when you talk about reparation and when you talk about compensation, it cannot just be the exact loss, the tangible loss that you can see, but it also has to include the compensation for the loss in the form of mental trauma, in the form of health, in the form of every hope of having a healthy, safe life in the city or in our country. And I think that is absolutely unfortunate. How do you really discriminate, or how do you really assess the loss? If you, I think as government or as us, not just as us, if we cannot assess the actual loss or faced by the people, how will we ever do justice to them? And it cannot just be pecuniary, but it should also be in the form of justice for the crimes that have happened against them through the courts, with cases against people who were involved, with FIRs in cases of hate speeches, with immediate action and immediate judicial intervention, which has lacked for over a year. And I think there has to be some sort of intervention now, like High Court or Supreme Court. Somebody needs to intervene at this stage, because otherwise the entire process will become redundant. It will become useless if people have to keep waiting for years to get a simple FIR registered against people who instigated the crowds to go and attack people, go and harm people who were peacefully protesting. ये सारा यहाँ कुरान करीम की रैक रखी हुई थी। यहाँ 100 का अंडर में कुरान करीम थे, पूरी रैक थी यहाँ स्टील की बनी हुई। सारा कुरान करीम को यहाँ रख करके उन्होंने पूरे में फैला करके जला दिया था। ये पूरी मैट बिछी हुई थी यहाँ मस्जिद में, सारी मैट जला दी थी। रात 11 बजे फिर यहाँ मस्जिद में बैठ के उन्होंने दारू पी। दारू पीने के बाद फिर जो है यहाँ पेशाब की। पेशाब करने के बाद फिर आग लगाई पूरी मस्जिद में। जैसे 28, 27, 28 तारीख में घूमने आए लोग दिन में, तो दिन में उनके ऊपर हमला कर दिया। एक साथी ख़त्म भी हो गया, उसके सर में राड मार दी, उसका भेजा बाहर निकल आया तो वो ख़त्म हो गया था। एक साथी के पैर में कुल्हाड़ी मार दी थी, उसका पैर टूट गया था। जिन चीज़ों को इंसान अपनी आंखों से देख लेता है और डरावनी माहौल को या इस तरीके से ऐसे माहौल को देख लेता है, तो उनको एडजस्ट होने में टाइम चाहिए होता है। अब मैं बैठा हुआ हूँ सुकून से, और अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, यानी 6:15 बजे 6:15 पर आप देखेंगे तो बहुत सारी हिंदू बहनें, हमारी हिंदू लोग बहुत सारे अभी यहाँ दरवाजे पर आपको मिलेंगे, झाड़ा फूँका कराने के लिए आते हैं। कोई मसला नहीं, ना उनको डर ना हमें डर, और सुकून से भी हम उनको झाड़ा फूँका भी करते हैं। जो हम मतलब हमारे ताल्लुक़ से जो खिदमत उनकी हो सकती है हम कर देते हैं। कोई पानी पड़वाना आता है, पानी पड़ देते हैं। अभी आप 6:15 बजे देखेंगे तो अभी लाइन लगी होगी, यहाँ आते हैं। जब 1 साल होने पर हम दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसमें भी ये बात सामने आई कि कई लोग ऐसे घायल मिले जिनको ये आश्वासन दिया गया था या न्यूज़ चैनल से ये पता चला कि दिल्ली दंगा अब रुक गया है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि अब सब लोग जाएं, शांति बिल्कुल हो गई है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो बाहर चले गए थे, दंगे से पहले ही बाहर गए थे, वो आ गए। उनको ये सुनिश्चित किया गया कि अब जो है शांति हो गई है। तो शिव विहार में 2 मौत हुई थी। शिव विहार में एग्जाम्पल, ज़्यादातर लूटपाट हुई, वहाँ घर जलाया गया। तो एक जो मौत हुई उसके बाद हुई, जब उन्होंने देखा टीवी में कि अब शांत हो गया है माहौल, तो वो अपने घर से आए। वो फरुखाबाद यूपी, वेस्ट यूपी के रहने वाले थे। एक परिवार था, वो 2 भाई आए वहाँ पे। वहाँ पर शिव विहार में वहाँ पुलिस वाले थे, वो भी कुछ नहीं कहे उनको, तो उनको मालूम था सब सामान्य माहौल है। वो अंदर गए। उसके बाद फिर वहाँ एक भीड़ थी, उनको पूछे नाम क्या है, वो आइडेंटी कार्ड दिखाए, और फिर जैसे ही मालूम चला कि हाँ ये मुस्लिम हैं, तो उनको फिर हमला किए और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो इस तरह के कई मामले हैं, कई मौत के ऐसे मामले हुए जो अजीत डोभाल के आश्वासन के बाद कि अब शांति हो गई है, कई हत्या उसके बाद हुई। तो वहाँ ये स्टोरी पता चली। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो घायल हैं, 1 साल बाद भी घायलों का बुरा हाल है। जो घायल हैं वो इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो कुछ काम कर सके, और घायलों का ये कहना था कि जो मुआवजे मिले वो ज़्यादातर इलाज में ख़त्म हो गए,
घर बनाने में खर्च हो गए या कुछ संस्थाएं वो बनाई थी, तो वो अभी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो काम कर सके। जो काम कर रहे थे वो काम छूट गया उनका। 1 साल बाद भी उनका जो हाथ टूटा था और रॉड लगा था वो भी अभी काम करने लायक नहीं है। तो उनकी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। दूसरा ये कि उनको न्याय की तरफ मोटिवेट करने के लिए कि वो जाएं न्याय के लिए, कोई संस्था काम नहीं करी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी संस्थाएं उनको डीमोटिवेट कर रही हैं कि वो न्याय के लिए कोशिश ना करें, जो हो गया ख़त्म हो गया। अब वो ये एक बहुत ही ख़तरनाक पहलू है। मुझे लगता है कि जो भी समाजसेवी संगठन है या जो सरकार उनको न्याय के लिए काम करे। हम तो चले गए थे सुबह के टाइम यहाँ से, जब रात को दंगा हुआ चौक पे, तो सुबह हम तो अपने बच्चों को लेकर सब चले गए थे। पूरे घर में कड़ी भी एक नहीं बची, पूरी छत लुटा दी हमारी, गाय भी लेके खोल के। हमें एक सिर्फ बकरी तो मिली और कुछ नहीं मिला घर में। 2 लड़कियों का दहेज का सामान कर रखा था मैंने, पूरा जलिया, बिल्कुल कुछ नहीं मिला मुझे घर में, एक सुई भी। यार मुझे तो सब्र भी ना आता घर में बैठ के। घर बन गया मेरा, पर फिर भी मुझे घर में वही रहे, मेरे दिमाग में से बात नहीं निकलती किसी टाइम भी। 2-3 मैं फैमिली आएंगे, जाकर देखो चद्दर पर चद्दर ओढ़ ओढ़ के जाड़ों में दिन काटे हमने, ऐसे मुसीबत काटे। और घर सब पूरे 7 महीने लोनी के अंदर रह का किराए पे, यहाँ रहे बिना। घर ऐसा कर दिया था बिल्कुल हमारा। इन्होंने हमारी गैर में अच्छा नहीं करा। हकीकत बात, हमारी लोन जो उठ जाती तो हमें किसी भी जिंदगी सुधर जाती हमारी। अब लोन जो दोनों छाती पर रखी हमारी जमान, और अभी किंगे से दंगा होने लगा है तो कहाँ जावे हम उन्हें, किसके घर लेकर बैठे हैं। और अभी किंगे से सुर्राख से सुन लेंगे जब इन्हों डर रहेगा। अपनी तो जान, अपनी लोन जो कि पहले सोचें हम इनकी क्या रहा होगा इनका। और जब पास पल्ले कुछ है ही नहीं तो इनकी शादी कैसा करें, और किसी का कोई सहारा ही ना किसी का। Our team is dealing with around 60 cases so far, the compensation cases. Besides the compensation cases, we are also going to the magistrate and we plan to file separate FIRs in the cases. Law and order comes under the purview of central government, Home Ministry. So we are also asking the central government to step in and also pay the compensation amount. क्योंकि अगर इससे पहले के अनफॉर्चुनेटली दंगे तो भारत में होते हैं, अगर देखें तो 84 में हुआ, the community was Sikh community. Then 2002 again in Gujarat. Then happened Muzaffarnagar. So a lot of other pogroms also happened in between. But these are some of the major instances and we have some of the jurisprudence from those cases. So in the very landmark judgment which we are relying on is Bhajan Kaur versus the Union Territory of Delhi, in which the court has specifically said that this is the responsibility of the state. Because this is violation of my fundamental right to life and liberty. If I am living, I have already surrendered my rights to the state that you have to see, you have to protect me. That is the contract between you and me. This is the liberal contract that has happened between us. Now you have failed to protect my house, you have failed to protect my life. And now when I come to you and ask for a compensation and I ask you that you put me back to the previous position which I was in, you tell me that you have no obligation, you have no legal obligation. And I'm not making this up. This is what the state has given us as a reply. The Delhi government, unfortunately, which also belongs to the Aam Aadmi Party, they have given us a reply that this is not our legal obligation, this is our moral obligation. हम लोग जितना दे रहे हो उसमें खुश रहो, बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है. Why should I even come to the court to ask for compensation? This should be something so obligatory. This should be the obligation of the state. Now, if something has happened to me, you should come to me and give me the compensation, or you should ask, you should admit that you have failed. 53 people died in the communal violence. Who is responsible? The state is saying we are not responsible. Then who is responsible? The scheme states that maximum we can give you 10 lakh. That too in the case of death. Now you imagine they are giving you 10 lakh only in the cases of death of a major person, and otherwise they are giving you just in thousands. How will I recover? What will I get? So it's a very poorly done scheme. We are challenging the scheme and we await what the courts will say on this. And many of the people have not even got the compensation as per the scheme as well. तो जिसको 10,000 भी मिला वो भी नहीं मिला, तो कहाँ जाए बंदा? In the case of somebody dying, a civilian is dying, you're giving us 10 lakh. But in the case
some IB person has died, the Delhi government gave them 1 crore rupees. Very good. We also want you to give us 1 crore in every case. What is the problem? Why this discrimination? We do not have a problem with you giving them 1 crore, but we have a problem why you're not giving it to us, to other people who have also died. And the value of life cannot be compensated through money, admitted. And it can also not be compensated through just rupees 10 lakh, which were given even 3 decades earlier. So you have to increase the amount. That is very important. That is what we are asking. You enhance the amount. And you pay them immediately when they need it. Not after 10 years when I've been to the court so many times. उसके बाद मेरे खाते में आ रहा है, क्या फ़ायदा? And I think it's very tragic that nobody is talking about these things. किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है अब, कोई बात ही नहीं करना चाहता.